अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस का हुआ आज तौसी इजलास। तेलंगाना कांग्रेस उमूर की नई इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, बी महेश कुमार गौड़, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीगर पार्टी कायदीन ने की शिरकत। अवाम का बरसों से जारी इंतजार हुआ खत्म। कल यानी 1 मार्च से जारी किए जाएंगे नए राशन कार्ड्स। आज कौमी यौम साइंस के मौके पर हैदराबाद में मरकजी वज़ीर राजनाथ सिंह ने साइंस एग्जीबिशन का किया इफ्तिताह। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने भी किया खिताब। कर्नाटक में होटलों और रेस्टोरेंट में प्लास्टिक के इस्तेमाल को मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला। रियासती वज़ीर सेहत ने किया ऐलान। मोदी हुकूमत कौमी कमीशन बराए दर्ज फहरिस्त NCSC को कर रही है जानबूझकर नज़रअंदाज। कांग्रेस रुकने पार्लिमान राहुल गांधी ने लगाया इल्ज़ाम। और इसराइली निज़ाम 7 अक्टूबर 2023 को तबाहकुन नाकामी का शिकार हुआ। जालिम इसराइली फ़ौज की तहक़ीक़ात में किया गया इंकशाफ। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस का तौसी इजलास मुनक़िद किया गया। तेलंगाना कांग्रेस उमूर की नई इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने इसकी निगरानी की। सदर प्रदेश कांग्रेस बी महेश कुमार गौड़, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, रियासती वज़रा, पार्टी अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल, अरकान पार्लिमान, जिला सदूर और दीगर सीनियर कायदीन भी इस मीटिंग में मौजूद थे। कई कांग्रेस लीडरों को मीनाक्षी नटराजन से अपना तारुफ कराते देखा गया। MLC आमिर अली खान भी इजलास में मौजूद रहे। इजलास में रियासत की सियासी सूरत हाल, हुकूमत की कारकर्दगी, फलाही स्कीमात पर अमल और दीगर उमूर पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికలకు ముందిచ్చినటువంటి వాగ్దానంలో ముఖ్యాంశం బీసీలకి న్యాయం చేస్తామని. ఆనాడు రాహుల్ గాంధీ గారు, సోనియా గాంధీ గారు, ఖర్గే గారు కూడా పదే పదే ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే రాహుల్ గాంధీ గారు ఏదైతే కోరిక కోరుతున్నాడో ఈ దేశంలో జిస్కి జితని ఆబాదీ ఉన్కు ఉతనే భాగేదారి అనే నినాదాన్ని పరిపూర్ణంగా ఫుల్ఫిల్ చేస్తామని అయితే మాట చెప్పినారో ఆ మాటకు అనుగుణంగా ఈ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వచ్చి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారం చేపట్టిన తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి గారు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న అంశం కులగణన. ఆ కులగణన ఏ రకంగా జరిగింది, ఎంత నిష్పక్షపాతంగా, శాస్త్రీయ పద్ధతిగా, చాలా సూక్ష్మకంగా ఏ రకంగా జరిపి తీరినాము, ఈ దేశ చరిత్రలో ఒక కొత్త అధ్యాయాన్ని ఏ విధంగా తీసుకొచ్చినామో ఇవన్నీ కూడా వివరించాల్సిందిగా ఆ కమిటీకి చైర్మన్గా ఉన్నటువంటి మంత్రివర్యులు ప్రజాస్వామ్య విలువలు కాపాడడానికి కింది స్థాయి నుంచి గ్రామ పంచాయతీ నుంచి పార్లమెంట్ వరకు నిరంతరం పోరాటం చేసింది. ఈరోజు మన చుట్టుపక్కల దేశాలు చూస్తే భారతదేశంతో సమానంగా స్వాతంత్రం సాధించిన దేశాలు పాకిస్తాన్ కానీ, బంగ్లాదేశ్ కానీ, శ్రీలంక కానీ, పైన దేశాలు కానీ, సౌత్ ఏషియన్ దేశాలు కానీ, ఆఫ్రికాలో అనేక దేశాలు కానీ ఎక్కడ కూడా పూర్తి ప్రజాస్వామ్యం మిగల్లేదు. కేవలం భారతదేశంలో ఈ స్థాయిలో ప్రజాస్వామ్యం ఉందంటే దిస్ ఈస్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇన్ నో అదర్ కంట్రీ అరౌండ్ who got independence same time as us is democracy and freedom as vibrant as in India. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంట్రిబ్యూషన్. ఈరోజు మోదీ నాయకత్వంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం, నేను డైరెక్ట్గా పార్లమెంట్ సభ్యునిగా చూసిన, నేను రేవంత్ రెడ్డి గారు, వెంకటరెడ్డి గారు పోయిన పార్లమెంట్లో సభ్యులం. పార్లమెంట్లో ప్రతిపక్షాలకు గొంతు ఉండదు. ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. జ్యుడిషియరీ మీద మనం కమెంట్ చేయలేము. పూర్తిగా భారతదేశంలో మతపరమైన విభజన సృష్టించి రాజకీయ లబ్ధి పొందాలని, అదేవిధంగా అన్ని రకాలుగా స్వాతంత్రాన్ని, ప్రజాస్వామ్యాన్ని అణచివేసే ఈ ధోరణిలో, ఈ సమయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ జై బాపు, జై భీమ్, జై సంవిధాన్ అనే స్లోగన్ తీసుకోవడం ఇది చాలా సందర్భోచితంగా మనం చేస్తున్నాం. ఈ టైంలో ఎస్పెషలీ దేశంలో డెమోక్రసీ క్రష్ చేసే ఈ టైంలో ఈ స్లోగన్తో ముందుకు పోవడం
ऐसा बहुत कम होता है कि सियासतदान ट्रेन के जरिए सफ़र करते हों, खासतौर पर ओहदे के हामिल शख्सियात में ऐसे नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं। कांग्रेस हाईकमान ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस की नई जिम्मेदारी मीनाक्षी नटराजन को सौंपी, जो सादगी पसंद समझी जा रही हैं। वो ट्रेन के जरिए काचीगुड़ा हैदराबाद पहुंची, जहां उनका तेलंगाना कांग्रेस सदर बी महेश कुमार गौड़ और दीगर लीडरों ने शानदार इस्तकबाल किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस की नई इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन से मुलाकात कर उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर और दीगर कांग्रेस कायदीन भी मौजूद थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेलंगाना कांग्रेस उमूर की नई इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस में इख्तिलाफात नहीं है, सब मिलकर बहुत अच्छा काम अंजाम दे रहे हैं। आइए देखते हैं उनका ये तासुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और हमारे सबके नेता आदरणीय राहुल जी और प्रियंका जी ने जो जिम्मेदारी दी है तेलंगाना में कार्यकर्ता के रूप से मुझे काम करने के लिए, मैं यहाँ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे तमाम एमएलए और जनप्रतिनिधियों के जरिए हमारी कोशिश होगी कि जो संविधान के मूल्यों का भारत है उसके निर्माण के लिए तेलंगाना एक आदर्श प्रदेश बने और जिस तरह से यहाँ पर सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए मुख्यमंत्री जी ने पहल की है आदरणीय राहुल जी की प्रेरणा और उनके नेतृत्व में, उस काम को हम अपने संगठन के भी कार्यकर्ताओं के जरिए वो संदेश लेकर जाएं और उसको हम जन जन तक पहुंचाने का। तेलंगाना इंटरनल पॉलिटिक्स में लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स है देयर, सो हाउ यू गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम सर? देखिए, हमारी पार्टी में कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी में हम ये मानते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी एक कार्यशैली होती है और उसके अपने विचार होते हैं। हमारी कोशिश ये नहीं होती है कि सबके विचार को बुलडोज किया जाए, हमारी कोशिश ये होती है कि डेमोक्रेसी को हम सम्मान दें, पार्टी के अंदर भी जो विभिन्न मत हैं उनको सबको हम बराबर से स्थान दें और उसके बीच में से रास्ता लेकर के आएं। आपने देखा ही है कि हमारे पार्टी में विभिन्न तरह के विचार चुनाव से पहले भी थे, लेकिन जब चुनाव की बात आई तो सबने एकजुट होकर के चुनाव प्रचार में राहुल जी और खड़गे जी के नेतृत्व में काम किया। आदरणीय सोनिया जी की पहल से ये राज्य बना, इस बात की गरिमा हम सब लोगों के मन में है और आदरणीय सोनिया जी ने जो इस राज्य के लिए किया है उसको हम लोग कभी भी छोटा नहीं पड़ने देंगे। अवाम को बरसों से जारी इंतजार खत्म होने वाला है। कल से नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। मार्च के पहले हफ्ते में 1 लाख राशन कार्ड तकसीम करने का मंसूबा तैयार किया गया। इंतजामिया ने अवाम की दरखास्तों और हाल ही में की गई मरदूदशुमारी के दौरान मौसूल दरखास्तों का जायजा लिया है। इत्तला है कि शहर हैदराबाद में 29,000 अहल अफराद की निशानदेही पहले ही कर ली गई। इसके अलावा मीसिवा मराकिज से अब तक लगभग 1.25 लाख दरखास्तें मिली हैं। तेलंगाना हुकूमत ने हिदायत दी कि 1 मार्च से अजला में राशन कार्ड जारी कर दिए जाएँ जहाँ इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज नहीं है। आज कौमी यौम साइंस मौके पर हैदराबाद में तकारीब का आगाज़ किया गया। मरकज़ी वज़ीर राजनाथ सिंह ने इसका रस्मी इफ्तिताह अंजाम दिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन और हुक्काम भी इस मौके पर मौजूद थे। मुख्तलिफ़ किस्म के सेशन और मुकाबलों पर मुश्तमिल तकरीबात का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसका मकसद तलबा और अवाम में साइंसी तजस्सुस और मशगूलियत को फ़रोग़ देना है। रेवंत रेड्डी ने साइंस एग्जीबिशन और तलबा में शऊर समेत दीगर उमूर पर बयान दिया। రాజ్నాథ్ సింగ్ గారికి మనకు సమయం ఇచ్చి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వచ్చినందుకు పెద్ద ఎత్తున మీరు చప్పట్లతో వారికి స్వాగతం పలకాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. గట్టిగా తెలంగాణ బలము రాజ్నాథ్ సింగ్ గారికి తెలవాలి. గట్టిగా చప్పట్లతో కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి గారికి స్వాగతం పలకాలని తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక పార్లమెంట్ సభ్యులు కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు, శాసన సభ్యులు అరికపూడి గాంధీ గారు, డిఆర్డిఓ చైర్మన్ గారు, అదేవిధంగా సతీష్ రెడ్డి గారు, ఇతర రక్షణ శాఖ అధికారులు, వేలాది మంది తెలంగాణ నలుమూలల నుంచి వచ్చేసిన విద్యార్థులందరికీ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా మీకు అందరికీ స్వాగతం పలుకుతున్నా. ఈరోజు ఈ దేశం యొక్క రక్షణ, ఈ దేశాన్ని రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత ఇక్కడికి వచ్చేసిన యువకుల మీదనే ఉన్నది. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం, హైదరాబాద్ నగరం కొన్ని దశాబ్దాలుగా దేశ రక్షణలో అత్యంత కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నది. మన ప్రాంతంలో బీడీఎల్ కావచ్చు, డిఆర్డిఓ కావచ్చు,
మిదాని కావచ్చు, హెచ్ఏఎల్ కావచ్చు, ఇవన్నీ దేశ రక్షణ కోసం రాకెట్లను ఉత్పత్తి చేసే కాడ నుంచి మిసైల్స్ తయారు చేసే వరకు మన ప్రాంతంలో హైదరాబాద్ నగరంలో హైదరాబాద్ చుట్టూతా ఈ పరిశ్రమలు ఉన్నాయి. ఈరోజు దేశాన్ని రక్షించడంలో మన హైదరాబాద్ తెలంగాణ రాష్ట్రం అత్యంత క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తున్నది. అయితే ఈరోజు ఈ ప్రత్యేకమైన సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా లక్షలాది మంది విద్యార్థులకు దేశభక్తి పట్ల, దేశాన్ని రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత పట్ల ఒక అవగాహన కల్పించడానికి ఈరోజు ఈ ఎగ్జిబిషన్ని మనం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు रक्षा मंत्री जी, तेलंगाना राज्य से हर साल 1,10,000 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पास होकर ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख लोग कंप्यूटर साइंस पढ़कर अमेरिका जाने के लिए कोशिश कर रहा है. इसीलिए हम लोग ये कोशिश किए सांप्रदायिक इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए, देशभक्ति, देश को बचाने के लिए, आगे इस देश को रक्षा करने के लिए आज ये साइंस एग्जीबिशन हमें लगाया. आगे ये जो विद्यार्थी है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल. सदर नशीन तेलंगाना अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन उबैदुल्ला कोतवाल ने कहा कि अखिलती खवातीन में सिवाई मशीन तकसीम करने की स्कीम का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 2 मार्च को वनपर्ती में आगाज़ करेंगे. अखिलती अफराद को खुद रोज़गार की फराहमी के लिए हुकूमत ने 25 करोड़ रुपये मंजूर किए. 5,000 अफराद में फ़िक्स 50,000 रुपये तकसीम होंगे. उबैदुल्ला कोतवाल ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अखिलियतों की तरक्की और फलाह बहबूद के अपने वादे की पाबंद है. अप्लीकेशन काल फर करे तो इस पूरे तेलंगाना में 2.5 लाख एप्लीकेशन जैसो बेनिफिशियल एप्लीकेशन आए हैं. स्क्रूटनी जारी है और गवर्नमेंट की तरफ से सीएम साहब ने एक भरोसा दिलाया मुझे, जितने भी ज़रूरतमंद है नंबर मत देखिए आप, सब लोग जैसो आप जैसा करना है करो बोल के तो बात दी है. उसी अरसे में पहली बार जैसो तेलंगाना फाइनेंस कॉरपोरेशन, मैं समझता हूँ ये कॉरपोरेशन स्टार्ट जब से इतने बड़े पैमाने में करीब 40,000 मशीन सेविंग मशीन तेलंगाना में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना जा रहे हैं. उसका 2 तारीख को ये सो वनपर्ती में सीएम साहब उसका लॉन्च करेंगे. जहाँ पर कोड नहीं है 11 डिस्ट्रिक्ट्स में, उसमें 10,490 मशीन ये सो ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग 11 डिस्ट्रिक्ट्स में. 7 तारीख के बाद जैसो कोड पूरा सो ख़त्म होगा, उसके बाद पूरे तेलंगाना में जैसो बाकी मशीन भी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम चालू रहेगा. खाली मशीनें नहीं है बल्कि सीएम साहब ने एक सैंक्शन किए हैं फिगर और इस नंबर ऑफ सीएम साहब अनाउंस करेंगे. ख़ासकर तेलंगाना में जो बेवा औरतें हैं, मजलूम औरतें हैं, बेसहारा औरतें हैं, सिंगल औरतें हैं, उनको ऐसो खुद के कारोबार करने के लिए, खुद जैसे उनके हाथों उनके पैरों में ठहरने के लिए, उनके लिए भी मदद करने के लिए ऐसे एक स्कीम बना है, वो सैंक्शन हुआ है. वो नंबर और अमाउंट जैसे सीएम साहब अनाउंस करेंगे, वो भी ये सो इसी बजट में वो काम जारी होगा. साथ ही साथ जो फुकरू जमात है, आज भी ये सो मुसलमान ये सो बंदर को खिलाना, रींछ को खिलाना, सांपा पकड़ना, बिच्छू पकड़ना, गांव में फिरना, मंग लेना, फकर जो कर रहे हैं, वो लोग जैसे स्टीम लाने के लिए सो उनको एक बड़ा अमाउंट सैंक्शन किया है गवर्नमेंट ने. वो भी स्कीम बना है, वो भी सैंक्शन हुआ है, सीएम साहब अनाउंस करेंगे. मैं आपके ज़रिए मैं आवाम से ये चाहता हूँ कि पहली बार रेवंत रेड्डी साहब ने फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए इस तेलंगाना के मुसलमान और यूथ और नौजवानों को और नौजवान लड़कियों को, लड़कों को, औरतों मर्दों को जो कुछ भी अगर कारोबार करना है, वो इंस्टीट्यूट लगाने का है या कारोबार लगाने का है और कुछ करने का है, उसके लिए सो फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए पैसे सब्सिडीज अमाउंट देंगे, डायरेक्ट सब्सिडी देंगे, बैंकेबल सब्सिडीज देंगे, बैंक लोन्स देंगे. ये से काम जारी हुआ. सेकंड का जो प्रोग्राम है ये लॉन्चिंग स्टार्टिंग प्रोग्राम है. ये प्रोग्राम कंटिन्यू 4 साल चलेगा. इससे पहले हुकूमतों ने सिर्फ इलेक्शन के लिए एक प्रोग्राम बनाकर ये 100 लोग स्कीम सैंक्शन किए थे. इलेक्शन के बाद इलेक्शन टाइम में बांटते थे. 9 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन लास्ट 1 साल में लोग कुछ सब्सिडी लोन देकर जैसो इसको ये करें. ये यहाँ ये कांग्रेस हुकूमत में रेगुलर साहब की क़यादत में ये नहीं है, बल्कि ये स्कीम हम लोग 5 साल का स्कीम बनाए हैं. इसका 5 साल की स्कीम बनाए हैं. आज 2 लाख जो मशीन जैसे हमारे पास ऐप में हैं, फेस वाइज जैसे हर साल देते जाएंगे, हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे.
इतना ही आपके ज़रिए मैं आवाम से अपील करता हूँ कि जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ज़रिए जो कुछ भी एक प्रोग्राम से हो रहे हैं उसको ये सो आप। तेलंगाना के वरंगल जिला मामनूर एयरपोर्ट की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। रियासत हुकूमत की दरख्वास्त पर मामनूर एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए मरकजी वजीर राममोहन नायडू ने अहकाम जारी किए हैं। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 150 किलोमीटर के दायरे में दूसरा हवाई अड्डा न हो, इस बात का मुआहदा पहले GMR कंपनी के साथ था। ताहम रियासत हुकूमत और मरकजी वजीर राममोहन नायडू ने GMR के साथ बातचीत की और अब एयरपोर्ट के लिए वरंगल में ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। कर्नाटक होटलों और रेस्टोरेंट में प्लास्टिक के इस्तेमाल को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। रियासती वज़ीर सेहत दिनेश गुंडूराव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मजमूई तौर पर 500 रेस्टोरेंट्स, होटलों और सड़क किनारे से बंडियों पर फरोख्त की जाने वाली इडली के नमूनों की जांच की गई। इनमें से 35 जगहों पर तैयार करदा इडलियों में कैंसर पैदा करने वाले अनासर पाए गए। इडली बनाने वाले सरबराह वाले ट्रे में प्लास्टिक शीट्स का इस्तेमाल होता है। आइंदा होटलों में खाने की अशिया की तैयारी और पैकिंग के लिए भी प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल ममनू रहेगा। ये ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की गई तो सख्त कार्रवाई होगी। जुर्माने और दीगर तफसीलात के हवाले से जल्द अहकामात जारी किए जाएंगे। दूसरी जानिब कर्नाटक होटल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी राघवेंद्रा ने कहा कि होटलों में हम प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने कहा कि सिर्फ सड़कों पर जो खाने पीने की अशिया फ़रोख्त होती हैं वो लोग ही प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। सर हमारा गुड मॉर्निंग। हम एसोसिएशन में हमारे वी आर हैविंग गुड प्रेसिडेंट मिस्टर GK Shetty. He is every month explain for this plastic and government also cooperate this 100% hotel here not using plastic. Only footpath आदमी करते हैं, उसको भी ऑर्डर कर रहे हैं। विद इन दिस 1 or 2 months में पूरा क्लोज होते हैं। उसका बात नहीं, अच्छा क्वालिटी देते हैं। होटल में 100% बिल्कुल नहीं यूज करते, ओनली कपड़ा में इडली बनाते, क्या करें तो वो का बनाते। अच्छा, लोग कस्टमर्स का हेल्थ देखते हुए क्या क्या आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं? नहीं, इफ यू वांट रिक्वायर्ड गुड बिजनेस यू मस्ट मेंटेन गुड क्वालिटी एंड क्लीननेस, हाइजेनिक। हमारा प्रेसिडेंट नवा आ गया, ही इज एवरी मंथ इज गिविंग गाइडेंस फॉर ऑल होटल ईयर्स, नॉट ओनली वन होटल, ऑल होटल एवरी मंथ वी आर मीटिंग 1 डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेपरेट करते हैं। ऑलरेडी वी आर ऑल फॉलोइंग। राघवेंद्र, जनरल सेक्रेटरी होटल एसोसिएशन। गुरुस्वामी सेंटर सिकंदराबाद में कैंसर से मुताल्लिक़ एक शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी के मुताबिक रामिंदर कुमार और दीगर शख्सियात ने इस मौके पर लेक्चर दिया। So what happens here, I would share that in average Indian families, most Indian families, in our attempt to be the best caretaker and caregiver of someone who's unwell, whether it's cancer or something else or just a fever, what we do in our attempt to take care, we mollycoddle, we corset, we completely cocoon the patient, making them sometimes an invalid. But if you have a caregiver, and I would advise all caregivers for whatever reason to keep the patient in their normal space, allow, quote unquote, allow them their normal space, being there ready to hold them in case they trip. And I think that is a very powerful message which needs to be shared with society, with all of us, each and every one of us, because we are all at that age. God forbid we all need to do this for someone or someone needs to do it for us, but it won't happen. If we are able to internalize that, normalize yourself and the situation that you are in, dealing with it the best way you can, allowing the patient to do what they think is the best for them. That I think is a very powerful statement. And I think thanks to Madhvi and the children, I think Raman was able to do whatever he wanted to do, and he continues to do whatever he wants to do. Like Jayant did for me. I danced through cancer. I danced after surgery. I danced through chemotherapy. I danced through radiation. Was it easy?
शहर हैदराबाद की सड़क पर अचानक हिरन का बच्चा नमूदार हो गया, तहम पुलिस ने इसे पकड़ा और महकमे जंगलात के हवाले किया गया। इत्तलात के मुताबिक हिरन के बच्चे की तिबी जांच के बाद इसको जू भी मुंतकिल किया गया है। ये बच्चा दरअसल मेहदीपट्टनम के इलाके में दस्तियाब हुआ, जो कि लोगों की फिक्रमंदी का बास भी है। आसिफ नगर पुलिस हदूद गुड्डी मलकापुर की साईं बाबा मंदिर के करीब हिरन का बच्चा देखा गया। पुलिस ने फौरी पहुँच कर पकड़ लिया और महकमे जंगलात को इसकी इत्तला दी गई। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ज़ेर तामीर इमारत मुनहदिम हो गई। इस हादसे में तकरीबन 6 अफराद जख्मी हुए, जो कि मजदूर बताए गए। मलबे से मजदूरों को निकाल कर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। इस पूरे मामले की पुलिस और यूनिवर्सिटी इंतजामिया जांच कर रही है। श्रीशैलम कैनाल के SLBC टनल के तमाम 8 वर्कर्स की मौत की इत्तला मिली है। तकरीबन 7 दिनों से ऑपरेशन जारी था, जिसके बाद आज इस बात की तस्दीक हो गई कि तमाम 8 वर्कर्स की मौत वाक़ई हुई है। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि रुयत हिलाल कमेटी हैदराबाद की इत्तलात के बमौजूब आज चांद नज़र नहीं आया, इसलिए कल 30 शाबान होगी और 2 मार्च से रमज़ान अल मुबारक का आगाज़ होगा। और अब बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस रुकन पार्लियामान राहुल गांधी ने आज मोदी हुकूमत पर कौमी कमीशन बराए दर्ज फेरीजात NCSC को जानबूझकर नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मरकज़ की BJP क़यादत वाली हुकूमत को दलित मुखालिफ ज़हनियत रखने वाले करार दिया और कहा कि हुकूमत दलितों के आइनी और समाजी हकूक़ पर बराह रास्त हमले कर रही है। राहुल ने लिखा कि BJP हुकूमत की दलित मुखालिफ ज़हनियत का ये सबूत है। दलितों के हकूक़ की हिफाजत करवाने कौमी कमीशन में दर्ज फेरीजात को नज़रअंदाज किया गया। उसके 2 अहम ओहदे खाली पड़े हुए हैं। इसे कमज़ोर करना, दलितों के आइनी और समाजी हकूक़ पर हमला करना है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से मुखातिब करते हुए कहा कि फौरी तौर पर इनके तक़र्रुरात अमल में लाए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज दिल्ली में यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डर लेयन से मुलाकात की। इस मुलाकात का एहतमाम दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के मकसद से किया गया। इस मौके पर हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों ने वफूद की सतह पर बातचीत की है। समझा जा रहा है कि इस दौरे के मौके से यूरोपीय कमीशन और हिंदुस्तान के ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने की सिमत में एक अहम कदम हो सकता है। ज़ालिम इसराइली फ़ौज की तहक़ीक़ात में इंकशाफ हुआ कि इसराइली निज़ाम 7 अक्टूबर 2023 को तबाहकुन नाकामी का शिकार हुआ। इसराइल ने अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया और इस बात की तस्दीक की कि हमास तंजीम चंद घंटों के अंदर हमलों में कामयाब रही। तहक़ीक़ात में कहा गया कि 7 अक्टूबर की रात को इसराइली सिक्योरिटी सर्विसेज हर सतह पर नाकाम रही, जिससे ज़ाहिर होता है कि सानहा मरने वालों और ज़ख्मियों की तादाद के लिहाज से नाकाबिले बर्दाश्त था। रिपोर्ट में लिखा गया कि 1.5 साल के दौरान गज़ा में जो भी कामयाबी हासिल की गई, उनसे 7 अक्टूबर की नाकामी को छुपाया नहीं जा सकता। ज़ालिम फ़ौज ने एतराफ़ किया कि हमें यकीन था कि हमास को काबू कर सकते हैं, लेकिन ये साबित हो गया कि ये एक बहुत बड़ी गलती थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि कनाडा, मैक्सिको और चाइना से दरामद होने वाली अशिया पर इजाफी टैक्स आयद करेंगे ताकि अमेरिका में मनशियात की स्मगलिंग को रोका जा सके। हम 4 फरवरी को उन्होंने फैसला 1 महीने के लिए मुकर किया था। अब ट्रंप ने कहा कि 4 मार्च से ये टैक्स दोबारा नाफिज करेंगे। ट्रंप ने कहा कि ख़तरनाक मनशियात चाइना में तैयार होती है और मैक्सिको और कनाडा के रास्ते अमेरिका पहुँचती हैं और हम इसे रोक लगाना चाहते हैं। I have to tell you that, on April 2nd, I was going to do it on April 1st, but I'm a little bit superstitious, so I made it April 2nd. The tariffs go on, not all of them, but a lot of them, and I think you're going to see something that's going to be amazing. We've been taken advantage of as a country for a long period of time. We've been tariffed. We support Canada, $200 billion a year in subsidy. We lose 300,000 people a year to fentanyl. Not 100, not 95, not 60 like you read. You've been reading it for years. We lost, in my opinion, over the last couple of years, on average, maybe close to 300,000 people dead. And the families are ruined. When they lose a daughter, when they lose a son, the families are never the same. You're never going to be the same. So you're talking about 1 million people. But when the daughters die, I see it, daughters die and the sons die because of fentanyl. And in some cases, I don't even know they're taking it. They're buying something else and it's laced with fentanyl and they end up dying. And I've known many people who've lost children to fentanyl and for other reasons, but to fentanyl, it's such a big killer. And those people are never the same people. I mean, I've seen people that for the rest of their lives, they're not the same people. They're so different, it's not even believable. Dynamic people, happy people they die a miserable death. And that's because of the crap that comes in through China and through Mexico and through Canada. और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस का हुआ आज तौसी इजलास। तेलंगाना कांग्रेस उमूर की नई इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, बी महेश कुमार गौड़, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीगर पार्टी कायदीन ने की शिरकत। अवाम का बरसों से जारी इंतजार हुआ खत्म। कल यानी 1 मार्च से जारी किए जाएंगे नए राशन कार्ड्स। आज कौमी यौम साइंस के मौके पर हैदराबाद में मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने साइंस एग्जीबिशन का किया इफ्तिताह। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने भी किया खिताब। कर्नाटक में होटलों और रेस्टोरेंट में प्लास्टिक के इस्तेमाल को मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला। रियासती वजीर सेहत ने किया ऐलान। मोदी हुकूमत कौमी कमीशन बराए दर्ज फहरिस्त NCSC को कर रही है जानबूझकर नजरअंदाज। कांग्रेस रुकने पार्लिमान राहुल गांधी ने लगाया इल्ज़ाम। और इसराइली निज़ाम 7 अक्टूबर 2023 को तबाहकुन नाकामी का शिकार हुआ। जालिम इसराइली फ़ौज की तहक़ीक़ात में किया गया इंकशाफ। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।